हेलो एंड वेलकम टू लीगल एंगल, जहाँ पे आपके लीगल प्रॉब्लम के सोल्यूशन देते हैं हम, और मैं जीनल आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आप पहले मिल चुके हैं, सो प्लीज़ वेलकम एडवोकेट विनोद सी संपट। वेलकम सर, कैसा लग रहा है आपको फिर से हमारे स्टूडियो में आकर? I really appreciate the pains being taken by this channel. आज मैं आपके साथ में मेरे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा। द फर्स्ट टिप इज एज फार एज पॉसिबल डोंट विजिट एनी गवर्नमेंट ऑफिस। आपके पास 10 रुपये की कोर्ट फी स्टैम्प राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप इसका जितना एडवांटेज लेंगे वो कम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट डोंट गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिस, प्लीज़ राइट वन लेटर। अगर लेटर का सही तरह से आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो फॉलो इट अप अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 10 रुपये की कोर्ट फी लगा के। देर इज़ एन अकाउंटेबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफिसर कि वो खुद के टेबल पे 7 दिन से ज़्यादा फाइल रख नहीं सकता और 45 दिन के अंदर उसे वो मैटर एंटायरली क्लोज करनी चाहिए। कोई भी वजह से एक लेटर लिखने के बाद में आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो मेरी आप लोग से गुजारिश है कि सीनियर ऑफिसर को वो आगे वाला लेटर प्लस नया लेटर और साथ में आपने जो RTI किया है वो तीनों की कॉपी भेजिए। As a taxpayer, if the matter is of Bombay Municipal Corporation, you say that the citizens of this particular city are giving you more than 40,000 in the crores of in the nature of 40,000 crores in the nature of taxes, and they expect some sort of services from you. Always make it a point to frame a question properly. Appreciate the difficulties of a government officer, give him sufficient time, and while we are framing a question, it should not ask for multiple informations or things which are not directly relevant to you. Start the question with, as per record, what are the rules and regulations pertaining to so and so subject? As per record, how many complaints have been received pertaining to dash after my complaint dated dash? As per record, of the complaints received after my complaint, have any complaints been sorted out? As per record, are complaints taken by this authority serial number wise or in which particular manner? As per record, who is the officer supposed to take up the complaint and within how much time he is supposed to reply and ensure that the complaint is solved? As per record, who is the superior officer to be approached if the particular complaint has not been sorted out? So if you write a question in this particular manner, it will carry more force. Please appreciate the difficulty of the government officer, but simultaneously it is important for us that we are taxpayers. The other party is a public servant. He is meant to serve the members of the public. So he cannot take you for granted. If after sending the complaint there is not proper response, you can certainly file another complaint. One complaint you can experiment it through the consumer protection laws, because a government, when it is collecting money from you, they are service providers in many areas, and if proper service is not given, then under the ambit of deficiency of service and unfair trade practice, you can target the government department that they have failed to provide service, and action can be taken against the department. Classic case of this is medical negligence, which we see, and crores of rupees collectively are awarded as damages by the crores. So if you emphasize it properly, the chances of your complaint getting resolved without visiting the government office is also possible. हिंदी में अपना मतलब कल का yesterday के लिए भी होता है और tomorrow के लिए भी होता है। ऐसा ना हो कि आप कल आज और कल के चक्कर में गवर्नमेंट ऑफिस में जाते रहे और आपको ऑफिसर मिले ही नहीं। Find out the email ID of the officer
and send the complaint via email also. There is no harm in forwarding a copy of the complaint to the Chief Minister's office, because government office में अगर चीफ मिनिस्टर को आपने चिट्ठी लिखी है, चीफ सेक्रेटरी को लिखी है और हायर मिनिस्टर्स वगैरह को लिखी है, तो देयर इज एन अनटोल्ड रूल दैट सच कंप्लेंट शुड बी टेकन अप ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. Normally such people will not even bother to read the complaint. They will just forward it to the concerned department telling them याच्या उत्तर द्या आणि त्याची प्रत या कार्यालयाला पाठवावा. But because it is being sent by a higher authority, the probability of your complaint getting sorted out is much higher. Another tip which I would like to share with my readers is, supposing you are in some sort of litigation and your age is above 60. The High Court has issued circular. Our Bombay High Court has issued a circular. The sum and substance of the circular is, if any litigation of any nature whatsoever is being done by a senior citizen, and if he makes an application to the court, then the court, if it feels appropriate, has a right to take the case on a priority basis. Obviously, if a person is above 60 years, he has got less years to live now, right, and the court feels it is a moral obligation of it to ensure to take up his case on a priority basis. This power is given by by High Court to the lower courts. This circular is issued in the overall interest of the senior citizens, but that does not mean that the senior citizen has got a right to expect his case to be taken up faster, but certainly he can make an application to the court, and sometimes if court feels that there is substance in the matter, they may prioritize. So that can help you in, taking up your matter on a priority basis. Okay. Thank you, sir, for this information. I think it will be very helpful to our viewers. एक और चीज़ आपने जो अभी बताई, RTI, which is Right to Information Act. Can we have more details on it? Our parliament has recognized the fact that what is going on in the government, every citizen has got a right to know about it. Of course, some certain matters are restricted, but by and large, as far as the working is concerned, there has to be total transparency for the working. Okay. What is going on in the government office, by making a simple application in a prescribed form, whether it is in English, Hindi or the language of the state, you make an application, affix a 10 rupee court fee stamp, write down your name, address or even your postal address, post box number, the subject of information what you want on what topic, request the government authorities, then they are expected to give you the relevant information within 30 days. If the officer is not able to give that information, he can be even fined up to rupees 25,000 per offence. There has to be a right to information officer in each department of the government, and he is accountable for all these things. So the things, mechanism at the government office, you can have all those information. If you wish, you can even inspect the records by going to the government office. There are various judgments being passed by officers. You can assess those judgments also. In short, what work he is doing from 10 to 5. You can ask him all the details of the work done by him. What all things are there in your particular matter when you have written a letter, what reply you have got, what is the stage of the matter. Government wants transparency, and they have made this particular act so that the members of the country can assess information. The information need not be connected to you directly. You can ask information from your friends. You can ask information of a topic which may be not connected to you directly, but in which you are interested, and the government officer is duty bound to reply to them. Now, because of this particular act, bureaucrats are very, very conscious, and they don't try to hide things. Earlier, the files were kept a secret. The file notings were kept a secret, but now anyone can access the file notings and make an application and get the things in writing. This is a very good thing which every citizen of India can utilize,
and the format is so simple that even a SSC pass person can fill the form, ask for the information, and where he wants the information to be delivered by registered AD, or he would like to collect it from the office, he can get those information at the desired place. He has to pay a certain marginal charges for the same. ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे एंड दिस टाइम वी विल नो अबाउट व्हाट इज कंज्यूमर फोरम। वेलकम बैक टू लीगल एंगल। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि विनोद जी हमें बताने वाले हैं व्हाट इज़ कंज्यूमर फोरम। सो जानते हैं कि उनका क्या कहना है और प्रॉपर्टी मैटर्स में कंज्यूमर फोरम कैसे हेल्प कर सकता है। सो सर, देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी एक कानून बना है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्राहक सुरक्षा का ये कायदा है और वर्ल्ड में कई जगह पे यह प्रचलित है। इंडिया में डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट टू विच यू आर हैरेस्ड यू कैन अप्रोच। इफ़ योर क्लेम इज़ बिलो 20 lakhs, आपको कंज्यूमर फोरम के पास जाना है। 20 लाख से 1 करोड़ का क्लेम है तो आपको स्टेट कमीशन में जाना है, और अगर आपका क्लेम 1 करोड़ के ऊपर का है तो आपको नेशनल कमीशन में जाना है। आज आपने एक टीवी खरीदा, टीवी के मुताबिक जो टर्म्स कंडीशंस है वो फॉलो नहीं किए गए, आपको वारंटी कही गई थी पर दी नहीं गई है, तो क्या आपने गुनाह किया पहले पैसे देके? सर्टेनली नॉट। और ये एक एडिशनल रेमेडी है। इसलिए आप बेशक कोर्ट में जाइए, कंज्यूमर फोरम में जाइए, वहाँ पे आपका बिल दिखाइए, कैश मेमो, टीवी कंपनी जो भी है उसको इन्वॉल्व कीजिए, आपके डीलर को इन्वॉल्व कीजिए और कहिए कि मैंने पैसा दिया, चाहे डीलर ने सर्विस नहीं दी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने खरीदने के बावजूद मुझे सर्विस नहीं मिली है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे जो मेंटल टॉर्चर हुआ है, मेरा जो पैसा लगा है, दीज थिंग्स आर अमाउंटिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो मुझे उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। Harassment that is caused to me is also a good ground. Legal expenses which I have paid, I should get that back. I should also get back the money which I have paid. So court will call for the other party. After hearing both the parties, will give an order. By and large, the approach of the consumer courts are that if you have paid money, then the person who is taking the money is duty bound to render services to you and give a product which is satisfactory product. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि this right can be exercised by a consumer for his personal goods, personal things taken by him. आज मैं बिजनेसमैन के रूप में जाऊँगा तो कंज्यूमर फोरम विल नॉट एंटरटेन। मैंने बिल्डर से फ्लैट लिया और वो मैंने रहने के लिए लिया, सो आई एम अ कंज्यूमर, मुझे कन्वेंस नहीं दिया मेरी सोसाइटी को, सो आई एम ऑल्सो अ कंज्यूमर। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि कन्वेंस के लिए सबसे बेहतर जगह है जाने के लिए ये है कंज्यूमर कोर्ट्स, क्योंकि दे नो हाउ फ्लैट परचेजर्स आर गेटिंग चीटेड, हाउ बिल्डर्स आर मिसयूजिंग देयर पावर्स। सो बाय एंड लार्ज आप देखेंगे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे कॉम्पेंसेशंस भी उन लोग देते हैं। और फ्लैट का मान लो मैंने फ्लैट बिल्डर के पास से लिया है 2004 में, मुझे पोजीशन नहीं दिया गया, आज 2014 हो गया, तो मुझे 2014 के दाम से फ्लैट मिले वैसी मेरी प्रेयर होनी चाहिए। और कोर्ट्स आर सॉफ्ट ऑन द फ्लैट परचेजर्स कि इसकी वजह से इसने इतना सहन किया है तो उसको आज के दाम से उसके आजू बाजू की जगह में फ्लैट लेवे, तो उसमें नथिंग रॉन्ग इन इट, और वो उस तरह से ऑर्डर देते हैं। अगर बिल्डर ने आपको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो ये भी एक ग्राउंड है। आज अपने रीडर्स में से शायद किसी को पता रहेगा कि बम्बई में ओनली 8% ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर हैविंग बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो मेरी आप सब सोसाइटी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपकी सोसाइटी को बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, आपकी सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कन्वेंस नहीं मिला है, तो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव is to approach the consumer forum for deficiency of service and unfair trade practice if the
compensation is below 20 lakhs, and if it is more, you can approach the state commission or national commission. ये कानून आने से एक तहलका मच गया है और जागो ग्राहक जागो, ये एक स्लोगन जो है कंज्यूमर्स का वो काफ़ी मोमेंटम पकड़ रहा है और बिजनेसमैन्स जो फ्लैट परचेजर्स को और ग्राहक को ग्रांटेड लेते थे वो अब बंद हो चुका है और सब्सटेंशियल एक्सटेंट में उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है और कंज्यूमर फोरम्स में अच्छे अच्छे ऑर्डर्स पास किए हैं। उन लोग ने बिल्डर्स को जेल में भी भेजे हैं फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस। दे हैव गॉट ट्रेमेंडस पावर सिविल एज वेल एज टू टेक क्रिमिनल एक्शन ऑन द बिल्डर्स सुओ मोटो। आज कंज्यूमर फोरम में एक बार ऑर्डर पास होता है और उस पर वो एक्शन नहीं लेते तो सर्टेनली दे हैव गॉट एम्पल पावर्स टू टेक एक्शन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने हाउसिंग बोला, डॉक्टर से आपने सर्विस ली एंड देयर इज मेडिकल नेग्लिजेंस, यू कैन गो फॉर दैट थिंग, यू परचेज अ कार, यू हैव एंटर्ड इनटू सम बैंक ट्रांजेक्शन फॉर योर पर्सनल थिंग और बैंक ने कोई भी वजह से चेक घुमा दिया या आपको पैसा जो है आपके ऑनर नहीं किए, आपने कोई रजिस्टर्ड एडी किया, कुछ पैसे पोस्ट के माध्यम से भेजे और वो नहीं मिले टाइम पे, तो ऑल दिस ये गिव्स यू अ गुड ग्राउंड टू अप्रोच कंज्यूमर फोरम। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वकील रखने की ज़रूरत नहीं है और जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर सिंपल और समरी प्रोसीजर है, इसलिए लंबे चौड़े वकील लोग की ड्राफ्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लेन को रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से भी भेज सकते हैं और एक सिंपल एंड इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन के माध्यम से आपका जो तकरार है वो रिजॉल्व होने के चांसेस पूरे है। फास्ट रिजॉल्विंग चीज़ है एंड इट इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट। मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 25 जन है तो 25 में से एक दो बार आप 2 जन जाइए कोर्ट में, देखिए स्टेट कमीशन में या फोरम में या नेशनल कमीशन में, और आपको खुद महसूस होगा कि आपकी ताकत क्या है। आज पब्लिक कोर्ट में जाने से डरती है, ये एक रॉन्ग इम्प्रेशन है। आपको फास्ट और क्विक जस्टिस मिल सकती है इफ़ यू हैव गॉन विद द प्रॉपर अप्रोच एंड आफ्टर डूइंग द प्रॉपर होमवर्क। थैंक यू सर। हम हमेशा ये वर्ड सुनते रहते थे, कंज्यूमर फोरम, आरटीआई, इन सब के बारे में हमें बताने के लिए। चलिए अब चलते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुद्दों पे। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ जो कमिटी मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो अपने पर्सनल इश्यूज़ और राइवलरी की वजह से मेंबर्स को परेशान करते हैं। सो कैन वी हैव लाइट ऑन दैट इश्यू? जैसे कि आप जानते हो, अगर मेंबर को कोई डिफ़िकल्टी होती है तो उन्हें ऑब्वियसली सोसाइटी के पास जाना पड़ता है। आज मैं मेंबर हूँ, मेरे को मेरे बच्चे के लिए कुछ पासपोर्ट बनाना है और वो ऑफिसर एक सर्टिफिकेट मांगता है कि आप ये फ्लैट में रहते हो, तो ऑब्वियसली मुझे सोसाइटी के पास जाना पड़े। आज मेरे को मेरा पार्किंग चाहिए, मेरे को एक भी पार्किंग नहीं है, सेक्रेटरी के पास 3 पार्किंग है, तो मैं तो एक पार्किंग चाहूँगा एज अ मेंबर, बिकॉज देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। पर ऐसे सब चीज़ में अगर ऑफिस बेरर्स हैव गॉट सम प्रेजुडाइज, then they can harass me. If they refuse something, the concept of accountability is lacking on him, but my work will get affected. आज मान लो मैं मेंबर हूँ सोसाइटी का और सोसाइटी का सेक्रेटरी एस्टेट एजेंट है, तो मेरा ग्राहक कोई भी आएगा तो वो ठीक तरह से उससे बात नहीं करेगा और उसमें मेरे लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स हाउ अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर कैन मिसयूज हिज पोजिशन। The office bearers of a cooperative society are having a lot of informal powers over the members, specifically if there is a particular need of the member. Example, मेरे घर में शादी है और मेरे को बिल्डिंग की जगह में एक डिनर पार्टी रखनी है या टेरेस में रखना है, तो सेक्रेटरी बोलेगा आई विल नॉट परमिट यू। सो द स्ट्रेस लेवल दैट विल कम ऑन मी विल बी मच मोर। अगर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स इस तरह से किसी नॉर्मल मेंबर को परेशान करते हैं, सो व्हाट आर द स्टेप्स दे कैन टेक? जब मेंबर को हैरेस किया जाता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक मेंबर हैरेस करता है तो मेंबर को अपनी ग्रीवेंसेस मैनेजिंग कमेटी के साथ में रखनी चाहिए, बिकॉज आखिर में सब साथ में ही रहते हैं। मैनेजिंग कमेटी के लेवल से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसमें वो सफल नहीं होता, देन ही हैज़ अ राइट
to go to the general body with the necessary requisition number and request the society to call for a general body meeting. और जनरल बॉडी मीटिंग में वो खुद का प्रॉब्लम बाकी लोगों से मेंबर को अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने चाहिए. अगर सॉल्यूशन मैनेजिंग कमेटी से आता है तो बढ़िया है, अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसे जनरल बॉडी में रिक्विजिशन मीटिंग बुला के सॉल्यूशन लाने की कोशिश करनी चाहिए. अगर ये सारे ऑप्शंस नहीं होते, निपटना सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं आता, तो उसे कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेके, एडवोकेट की हेल्प लेके एक नोटिस इश्यू करनी चाहिए. और उसके बावजूद भी सोसाइटीज़ मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स आर बिहेविंग इन अ डिफंक्ट मैनर एंड एडमेंट मैनर, then definitely he can approach the consumer forum for deficiency of service and unfair trade practice. Of course, the demand of the members should be reasonable. It should not be to harass the managing committee member, but only to assert the legitimate right which a managing member has got. थैंक यू वेरी मच सर. इन्होंने आज हमें छोटे छोटे पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे गाइड किया है. अगर आपको अपने किसी भी लीगल प्रॉब्लम के ऊपर जानकारी चाहिए, इंक्वायरी करनी है या फीडबैक देना है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगली बार हम विनोद जी के साथ ही फिर से आएंगे इनके नए नए वैल्यूएबल टिप्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.